Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone, and this is Aminul Islam with the new chapter L.P.P. This is the chapter number 12. Actually, this new branch of mathematics was introduced in the Second World War. The commanders wanted to know in the battlefield how they can destroy the opponents in the maximum using the minimum weapons. Later on, this important mathematical tool is used in the various branches and disciplines such as factory production, agriculture, business, and diet problem, investment, blendings, transportation, and so many fields and branches of mathematics and another fields also. Next, the historical background. In 1941, the Russian mathematician and economist Leonid Kantrovich and F.L. Hitchcock first introduced L.P.P. to solve the transportation problem. Later on, in 1975, L. Kantrovich and the American economist T.C. Kopmans won the Nobel Prize for their significant contribution in finding the process or the method to find the solution of L.P.P. There are three terms: linear programming problem. So why it is linear? Because here the linear inequalities will use and the function will be linear. All the constraints, that means the linear inequality which is constrained by the linear inequalities to the function, objective function in fact, these all will be linear. Why it is programming? Because we will make a plan to solve a problem, right? And that's why this is a program, and this program if we apply then we can get the optimum value, and that's why it is programming. Okay, so in the battlefield when the militaries transport their foods and weapons, and it is called programming, and that's why from that term it is called programming. Okay, now next we will learn what is L.P.P. So L.P.P. is nothing but the process to find the minimum value of a linear function containing few non-negative variables and constrained by few linear inequalities. Okay, so what is L.P.P.? The process of finding the optimum value of a linear equation, linear function containing few non-negative variables and constrained by few linear inequalities. So this is a process to find the optimum value of a linear function containing few non-negative variables and constraints by few linear equations. यहाँ पर जो non-negative वेरिएबल्स रहेगा उसको हम डिसीजन वेरिएबल भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो फंक्शन का हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. इसके बारे में मैं बाद में बात कर रहा हूं. तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको L.P.P. को कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका. यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका डिस्कस किया जाएगा, वो है ग्राफिकल मेथड. एंड इन द हायर मैथमेटिक्स यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व ए लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सच एज बिग एम मेथड, simplex method, dual simplex method, and so many processes are there. And now we will learn the L.P.P. and its mathematical formulation. इसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है उसको हम सीखेंगे. Now let's take an example. Suppose a furniture dealer deals in only two tables, in only items, tables and chairs. Okay, he has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60. वहां पर जो डीलर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए रुपीस है वो है 50,000 और उसका जो स्पेस है इसका कैपेसिटी है 60 पीसेस का.
अब क्या है, ए टेबल कॉस्ट ₹2,500, एक टेबल के कॉस्ट है 2,500 एंड ए चेयर ₹5,500. सो और एक चेयर के कॉस्ट है 500. He estimates that from the sale of one table he can make a profit of ₹250. एक टेबल को अगर वो सेल करे तो उसमें उसका ₹250 प्रॉफिट रहता है, और एक चेयर सेल करने से उसका पास ₹75 प्रॉफिट रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फर्नीचर ही शुड बाय टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. अब जो एक डीलर है, he wants to maximize his profit, and the question is how much tables and chairs he should buy so that he can maximize his profit. चलो अब इसको हम कैसे एलपीपी में कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे इसको कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे. ओके, सो देयर आर टू आइटम्स, वन इज टेबल, अनदर वन इज चेयर. ओके, सो let's consider that the number of table is x. Suppose he buys x table and y chairs. उसको खरीदना है x tables and y chairs, right? Now see here, यहाँ पर जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 50,000 हो सकता है, राइट? और यहाँ पर हर एक टेबल का कॉस्ट क्या है 2,500, हर एक चेयर का कॉस्ट क्या है 500, राइट? ये सारी चीजों को हम लोग कंसीडर करके एक एलपीपी फॉर्म करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे, राइट? नाउ अगर वो डीलर एक्स टेबल्स खरीदा और वाई चेयर्स खरीदा, तो चलो देख लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट उसका कितना होता है. सो प्रॉफिट, हर एक टेबल उसको बिकने से उसका प्रॉफिट होता है 250, और हर एक चेयर को बिकने से उसका प्रॉफिट होता है 75. सो द टोटल प्रॉफिट इज 250x प्लस 75y. यही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्यों इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं z. सो z इक्वल्स टू, इफ वी कंसीडर दिस वन, सो दिस इज द प्रॉफिट, और इसी को, इस z को हमको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है, राइट? सो मैक्स z इक्वल्स टू दिस वन. ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन. ओके, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. क्यों इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि दिस फंक्शन we have to maximize this function. This is our objective, right? This is our goal, and that's why this is objective function. अब इसको मैक्सिमाइज करने के वक्त हम लोगों को कुछ कॉन्स्ट्रेंट को ओवरकम करना पड़ेगा. एंड व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट? सी हियर, लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट. एक्स टेबल का कॉस्ट होता है 2,500x प्लस, और वाई टेबल का कितना कॉस्ट होता है, यहाँ पर हर एक चेयर का कॉस्ट होता है 500, राइट? सो 500y, राइट? और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट हुआ ये तो कभी 50,000 को एक्सीड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 50,000 ही है. ओके, सो दिस विल बी लेस और इक्वल्स टू 50,000. ओके, दिस वन मोर थिंग, उसके पास जो स्पेस है, उसका स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो है 60 कैपेसिटी, राइट? तो अगर x टेबल्स है और y चेयर्स है, तो टोटल फर्नीचर कितना हुआ, x प्लस y. सो दिस विल बी x प्लस y, और इसका जो कैपेसिटी है वो है 60. सो दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 60, क्योंकि इसको तो हम स्टोरेज का जितना स्पेस है उससे तो हम ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं. दैट्स व्हाई x प्लस y इज लेस और इक्वल्स टू 60. वन मोर थिंग, ये जो डीलर है वो टेबल खरीद भी सकता है या फिर नहीं खरीद सकता है, चेयर्स को खरीद सकता है या फिर नहीं खरीद. ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है. इसीलिए दिस टू विल बी द ग्रेटर इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर जो तीनों इनइक्वालिटीज मिला, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. अगर बंगाली में बोले तो इसको बाधा बोलते हैं. ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, ये सारे हैम्पर्स है, जिसको ओवरकम करने के बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. ओके, एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव function. This one is the objective function. These are the constraints. इसको हम बोलते हैं constraints.
और यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू ही डिसाइड करता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अगर इसको मिनिमम भी होता तो उसका मिनिमम वैल्यू भी ये दोनों का वैल्यू, these two variables will decide what will be the maximum value of z. That's why these two variables are called decision variable. These two are called decision variable. So decision variables. तो ये जो x है और y है, ये दोनों है decision variables. So this is the construction of L.P.P. ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ था स्टोरी साम, इसी का L.P.P के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ये हो गया उसका प्रोसेस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे ग्राफिकली मेथड में, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तुम लोग इससे पहले क्लास 11 में इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करते हो वो तुमने सीखा है, और उसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइज, होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए तुम लोग सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।